Hello, good morning, all the students of 10th class. Today we are going to discuss our poem number 5th, that is the Ball poem. It is written by John Berryman. John Berryman is an American poet, and in this poem, John Berryman tells us about our reaction at some material loss. Material means जो चीज़ें पैसों से खरीदी जा सकती हैं. इसमें एक लड़का है who loses his ball and he is very upset at the loss of the ball. क्योंकि बॉल इतने ज़्यादा पैसे की भी नहीं है, बट इट इज़ नॉट इवन डिफ़िकल्ट टू बाय अ बॉल अगेन. लेकिन बच्चा जो है वो वही वाली बॉल को वापस चाहता है. द पोएट वॉन्ट्स द अंडरस्टैंड द चाइल्ड दैट लॉसिंग थिंग्स इज़ अ कॉमन थिंग इन ऑफ लाइफ. तो विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम, लेट डिस्कस आवर फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा में हमें पोइट क्या कहता है कि वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वॉट इज ही डू, आई सा इट गो merely bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. That means अब वो कहता है कि लड़के को क्या हो गया है, ये जिसकी अपनी गेंद गुम गई है, अब उसे क्या करना होगा. उसने उस गेंद को नीचे जाते हुए भी देखा और खुशी से ऊपर आते हुए भी देखा. मतलब जब गेंद कहीं पर भी जाती है तो वो बाउंस होती है ना, तो अभी वो कहाँ गई है, पानी में गई है. पोइट क्या कहता है, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट अ पोएम. In this poem, talking about a boy who has lost his ball by the side of harbor. He wants to know about him and his reaction as he has lost his ball. पोएट वहाँ पर खड़ा हुआ देख भी रहा है. His ball was bouncing and it bounced and fell down into the water. The ball was cheerfully jumping up and down in the street. ये सारा का सारा हमें फर्स्ट स्टैंजा से पता चलता है. Now move to our second stanza. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the voice as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into harbor where his ball went. I would not introduce on him a dime, another ball is worthless. Now he senses his first responsibility. इन दिस स्टेंजा पोएट ने क्या कहने की कोशिश करी है कि बॉलें तो और भी हैं, और लड़का जो है जिसकी बॉल वो पानी में चली गई है, उसको बिल्कुल ऐसा दुख फील हो रहा है. वो बिल्कुल स्टन वहीं पर स्थिरता से खड़ा हो गया है, काँप रहा है खड़ा खड़ा, और अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोच रहा है, और उस जगह को घूर घूर कर देख रहा था जहाँ पर उसकी बॉल जो है वो चली गई थी. द बॉय हैड रियली शेकन ऑन द लॉस ऑफ हिज बॉल. The poet says that there is no benefit of consoling the boy by saying that कि हाँ चलो हम आपको दूसरी बॉल ले देंगे. वो ऐसा क्यों कहता है? Because the boy is feeling very sad as all the memories of the childhood days went down the harbor. हार्बर में चली गई उसकी वो. The boy reminds him of those sweet memories of the time when he has owned it. जब वो बॉल उसके पास थी. He is grief stricken. The loss is unbearable for him. वो इतना बड़ा दुख मान लिया था उसने कि उसके लिए वो unbearable हो गया था. The new ball will not bring the sense of belonging to the boy. The poet knows that the boy is learning his first lesson of life, to tolerate the loss. Now move to our third stanza. In a world of possession, people will take balls, and balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. इसमें एक वर्ड आया बेटा, एपिस्टोमोलॉजी, जिसको साइंस ऑफ नॉलेज बोला जाता है. तो वहाँ पर क्या है, द पोएट सेज दैट द बॉय हैज़ टू लर्न द थिंग्स इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मैनी थिंग्स विल बी लॉस्ट. बहुत सारी चीज़ें आपकी इस संसार में खो सकती हैं. द बॉय हैज़ टू लर्न टू लिव विदाउट देम. ही सेज दैट नो वन कैन बाय दिस थिंग्स बैक.
which he has lost. Money is an external thing, वो एक बाहरी चीज़ है. It is a medium of possessing things. बस हम उसके थ्रू चीज़ों को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं. But even money cannot compensate the sense of loss suffered by a person. अब पोएट ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ विच स्टेट्स दैट यू हैव एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन. तो यहाँ पर हमारी जो है ये 5th पोएम द बाल पोएम वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है. इसमें थीम क्या है? द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ द सेंस ऑफ लॉस इन लाइफ. अब लॉस जितने भी होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड फैक्ट ऑफ लाइफ. हमें हार्श ट्रुथ जो है, बिल्कुल कड़वे सच जो होते हैं, ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ओल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरीवन हैज़ टू बियर. हर आदमी को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है एज अ कॉमन मैटर. तो यहाँ पर जो है हमें पोएट ने समझाने की कोशिश करी है कि हमारे रिएक्शन जो है मटेरियल लॉस्ट पर इतने ज़्यादा हावी नहीं होने चाहिए कि हम पूरी लाइफ को ही वहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर दें या उसके आगे हमें कुछ दिखे ही ना. I hope you got the meaning of the poem. Thank you for watching.